صرف خزانے کی چوری کی نہیں ہے، نیا ایک بیٹے کی وفاداری، ایک ماں کے آنسو، ایک بادشاہ کی ضد اور ایک چور کی عقل کی کہانی۔ نیا وہ قصہ ہے جہاں موت کے فندے سے زیادہ تیز تھی، عقل کی دھار جہاں لاشوں سے زیادہ وزنی تھے، وعدے ناور جہاں تخت سے بڑی چیز تھی۔ ایک غریب کا ضمیر نہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ خزانہ صرف سونا ہوتا ہے ان تو یہ کہانی تمہارا خیال بدل دے گین، کیونکہ اصل خزانہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے اندر چھپا کر جیتا ہے۔ شاہی محل کے سنہری ستونوں کے سائے میں کھڑا شہنشاہ ریمس خزانے کی چمک سے اپنی آنکھیں چھپا رہا تھا۔ خالص سونے کے ہیرے، جواہرات اور چاندی کے برتن ایسے چمک رہے تھے جیسے سورج کی روشنی زمین پر برس رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجب بے چینی تھی، جیسے دولت نے اسے راحت کے بجائے خوف دے دیا ہو۔ یہ خزانہ میری سلطنت کی شان ہے اور میرا سب سے بڑا خطرہ بھی، اس نے سرگوشی کی۔ بادشاہ نے تاج اتار کر تخت پر رکھا اور درباریوں کو حکم دیا، ایسا کمرہ بناؤ جو نہ صرف مضبوط ہو بلکہ ناقابل تصور ہو۔ اس نے خفیہ کمرہ تعمیر کرنے کے لیے ایک بوڑھے کاریگر کو بلایا جسے صرف بادشاہ ہی جانتا تھا۔ اس کاریگر کی آنکھوں میں وقت کی تھکن تھی، مگر ہاتھوں میں فن کا طوفان چھپا تھا۔ چند مہینوں میں ایک ایسا کمرہ وجود میں آ گیا جو مکمل پتھر کا تھا۔ اس کی دیواریں سنگ مرمر سے بنی ہوئی تھیں، فرش ایسا لگتا تھا جیسے آئینہ ہو۔ کمرے کا ایک ہی دروازہ تھا جو صرف بادشاہ کے خاص کمرے میں کھلتا تھا اور اس کی چابی صرف شہنشاہ ریمس کے پاس تھی۔ رات کی تاریکی میں مسلح پہرے داروں نے صندوق در صندوق خزانے کے اس کمرے میں منتقل کیے۔ ہر قدم پر سونا کھنک رہا تھا اور فرعون کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی۔ خزانے کی منتقلی مکمل ہوئی تو فرعون نے گہرا سانس لیا، جیسے ساری سلطنت اس کمرے میں محفوظ ہو گئی ہو۔ فرعون ریمس نے چابی کو اپنے گلے میں تعویذ کی طرح لٹکا لیا۔ اب یہ خزانہ میرے سوا کسی کو دکھائی نہیں دے گا، اس نے دھیرے سے کہا۔ خزانے کی چمک نے اسے مطمئن کر دیا تھا، مگر اسے کیا معلوم یہ سکون عارضی ہے۔ سال بعد وہ بوڑھا معمار شدید بیمار پڑ گیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا۔ اس کے چہرے پر ایک راز تھا جو برسوں سے چھپا تھا۔ میں نے وہ کمرہ تمہارے لیے 2 بار بنایا تھا، ایک ظاہر اور ایک خفیہ۔ اس نے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کمرے کی دیوار میں ایک ایسا پتھر ہے جو صرف مخصوص ترتیب سے دبانے پر کھلتا ہے۔ یہ دروازہ تمہارے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ اس نے ہاتھ کانپتے ہوئے نقشہ بیٹوں کو دیا۔ کمرہ خاموش تھا، صرف وقت کی سانس سنائی دے رہی تھی۔ یہ خزانے تک رسائی کا دروازہ تھا اور تباہی کا آغاز بھی۔ اندھیری رات جب گاؤں پر سکوت چھایا ہوا تھا، دونوں بھائی اس خفیہ جگہ پہنچے جہاں ان کے باپ نے بتایا تھا۔ چھوٹے بھائی نے پتھروں کو ویسے ہی دبایا جیسے سکھایا گیا تھا۔ ایک گھمبیری سی آواز آئی اور دیوار آہستہ سے کھلنے لگی۔ دونوں کی سانسیں رک سی گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حرام اور حلال کے درمیان لکیر مٹ رہی تھی۔ دروازے کے پیچھے سونا، چاندی اور قیمتی پتھروں کا ایک جہان پھیلا ہوا تھا، جیسے صدیوں کا لوٹا ہوا مال اکٹھا ہو۔ بڑے بھائی نے چمکتے ہوئے تاج کو ہاتھ لگایا اور دھیرے سے کہا، یہ خزانہ صرف بادشاہ کا نہیں رہا۔ چھوٹے بھائی نے چپ چاپ کچھ سونے کے سکے اور ایک ہیرا اٹھایا، جیسے خوف اور لالچ کی لڑائی اس کے اندر چل رہی ہو۔ نانہوں نے صرف اتنا سامان اٹھایا جتنا آسانی سے چھپایا جا سکتا تھا۔ دیوار دوبارہ بند کر دی گئی۔ گاؤں واپس آتے وقت ان کے قدموں میں لرزش تھی، جیسے زمین خود ان سے سوال کر رہی ہو۔ مگر جیب میں سونے کے لمس نے دل کو دلاسا دیا۔ ناب یہ معمول بن گیا۔ ہر تیسرے یا چوتھے دن وہ رات کی خاموشی میں خزانے تک پہنچتے اور کچھ نہ کچھ لے آتے۔ سونا، ہیرے، قیمتی کپڑے۔ ان کے حلیے بدلنے لگے، چہرے پر غرور آنے لگا۔ گاؤں والوں کو حیرت ہونے لگی کہ یہ غربت میں پلنے والے اب اچانک دولت کیسے لٹا رہے ہیں۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے پوچھا، کیا ہم یہ سب کرتے ہوئے پکڑے نہیں جائیں گے؟ بڑا بھائی ہنسا، یہ راز صرف ہمارا ہے، دنیا کا نہیں۔ لیکن اس رات دروازہ بند کرتے ہوئے ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ ہوئی، جیسے کمرہ خود چیخ کر بول رہا ہو، کسی دن تمہاری لالچ تمہیں لے ڈوبے گی۔ ناب انہیں چوری کی عادت ہو گئی تھی۔ چیزیں وہ نہیں تھیں جو انہیں چاہیے تھیں، بس وہ اس لیے لے رہے تھے کیونکہ وہ لے سکتے تھے۔ بڑے بھائی کی آنکھوں میں خمار تھا اور چھوٹے کی آنکھوں میں سوال۔ خزانوں کے بیچ کھڑے ہو کر انہیں احساس نہیں ہوا کہ وہ خود بھی خزانے کی ایک قیمت بننے جا رہے ہیں۔ چند دنوں بعد شہنشاہ ریمس خزانے کی جانچ کے لیے آیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا صندوق کھولا، اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ یہ ہیرے کہاں گئے؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس کے قدم جم گئے اور آنکھیں گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ کسی نے خزانے کو چھوا تھا۔ اب بادشاہ کے دل میں وہی بے چینی پھر سے جاگ اٹھی تھی، مگر اس بار وہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔
शहनशाह रेम्स ने खजाने में खुफिया तौर पर एक आहनी फिंदा लगवाया, ऐसा फंदा जो चोरी की कोशिश करने वाले को लम्हों में जकड़ ले। फिंदा इस मकाम पर लगाया गया जहां सबसे कीमती हीरे रखे गए थे। बादशाह अब छुपकर नहीं, तदबीर से वार करना चाहता था। अब अगर कोई आया तो बच न पाएगा। नास रात दोनों भाई हस्बे मामूल खजाने में दाखिल हुए। बड़े भाई ने कीमती संदूक की तरफ कदम बढ़ाया, जबकि छोटा उधर उधर देखता रहा, जैसे दिल की गहराइयों से डरा हुआ हो। जैसे ही बड़े भाई ने हाथ डाला, एक चीख सुनाई दी। आहनी फिंदे ने उसके जिस्म को जकड़ लिया। न छोटा भाई रोने लगा, घुटनों के बिल गिरकर फिंदे को खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकार था। फिंदा बादशाह की मर्जी से लगा था और उसकी गिरफ्त मौत जैसी थी। हमें कुछ करना होगा, भाई, उसने कांपती आवाज में कहा। नबड़े भाई ने आंखों में मौत का अक्स लिए कहा, छोटे, मैं तो गया, लेकिन तू बच सकता है। छोटा भाई चीख पड़ा, नहीं, मैं तुझे यूं नहीं छोड़ सकता। मगर बड़े भाई ने उसकी गर्दन थामकर कहा, अगर मैं जिंदा पकड़ा गया तो सब कुछ बता दूंगा। तो मेरा सर काट कर ले जा, बस ये एक काम कर जा। छोटे भाई के हाथ कांप रहे थे, आंखों में तूफान था। उसने जमीन पर पड़ी खंजर को उठाया और अपने भाई के आंसू भरी आंखों को आखिरी बार देखा। फिर खामोशी से उसका सर जिस्म से जुदा कर दिया। लम्हा भर को वक्त रुक गया। नरात के अंधेरे में छोटा भाई एक कपड़े में लिपटा हुआ सर लेकर घर पहुंचा। माँ ने जब खून आलूद कपड़ा खोला तो दिल पर क़यामत टूट पड़ी। उसकी चीखों ने सारी गली को जगा दिया। मगर छोटा भाई खामोश था, आंखों में सिर्फ एक जुमला, अगर माँ रो पड़ी तो मैं भी मर जाऊंगा। नुमा ने सीना कोबी के बाद खामोशी इख्तियार कर ली। उसके आंसू खत्म हो चुके थे। बेटे ने धीरे से कहा, अगर तू रोएगी तो मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता। माँ ने कमर सीधी की और कहा, बस अब कुछ नहीं होगा। उस रात गांव पर अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे मौत ने खुद भी दम साध लिया हो। शहनशाह रीमिस खाली आंखों से लाश को देख रहा था, बगैर सर के, खामोश, मगर सवालों से भरी हुई। उसने गिरजदार आवाज में कहा, इसे महल के दरवाजे पर लटका दो। मैं उसको निकाल लाऊंगा जो इस लाश से बंधा हुआ है। सारी सल्तनत को एक लर्जा महसूस हुआ। नीलाश को महल के सदर दरवाजे पर ऊंचे बांस पर लटकाया गया। इसके गिर्द मुहाफिज खड़े थे, जिन्हें बादशाह ने सख्ती से कहा था, ऐन जो कोई रोया, जो कोई रुका, जो कोई झुका, पकड़ लो। नाब लाश सिर्फ एक जिस्म नहीं थी, बल्कि एक जाल बन चुकी थी। न दूसरे दिन लोग गिरोहों की सूरत में महल के दरवाजे के सामने आना शुरू हो गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब हैरत से उस लाश को देखते, मगर कोई रोया नहीं, कोई झुका नहीं। बादशाह के चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन आंखों में अब भी जीतने की जिद बाकी थी। न जब माँ ने सुना कि उसके बेटे की लाश शहर भर के सामने लटकाई गई है, उसका कलेजा दहल गया। उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटे, लाश ले आओ। मैं अपने बेटे को मिट्टी में उतारे बगैर चैन से नहीं मर सकती। नैन माँ, अगर मैं वहां गया तो पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। बेटे की आवाज़ लर्ज रही थी। नुमा ने अपना सर उठाया और खुश्क होंठों से कहा, अगर तू ना गया तो मैं खुद बादशाह के पास जाकर सब कुछ कह दूंगी। न खामोशी। फिर बेटे की आंखों से दो मोती टूट कर गिरे। रात छोटे भाई ने खामोशी से महल की तरफ जाने का फैसला कर लिया। इसके कदम लर्ज रहे थे, दिल की धड़कन गोया कैद खाने की जंजीरों की तरह बज रही थी। न अगर किस्मत ने साथ दिया तो भाई का जनाजा मुकम्मल होगा, वरना शायद मेरा भी। महल के बाहर की फिजा बदस्तूर बोझल थी। पहरेदार बदस्तूर अलर्ट थे, लाश बदस्तूर खामोश न। लेकिन फ़ज़ा में कुछ बदलने वाला था, क्योंकि जिस लाश को एक जाल बनाया गया था, वही लाश अब बादशाह की चालाकी को शिकस्त देने जा रही थी। अगली सुबह महल के दरवाजे पर लोगों का हुजूम मौजूद था। इतने में एक नौजवान दो गधों पर पानी की मिश्कें लादे आता है। वो सीधा लाश के करीब से गुजरता है। एक मुश्क का मुंह खुल जाता है, पानी जमीन पर बहने लगता है। वो झुकता है, बंद करता है, तभी दूसरी मुश्क भी बहने लगती है। पानी के बहने पर लोग हंसने लगे। मिश्की से पानी ऐसे निकल रहा था जैसे छोटा सा दरिया बह रहा हो। कुछ बच्चे उछलने लगे, कुछ लोग पानी चखने लगे। नौजवान हंसता है, शर्मिंदगी से कान खिंचाता है और एक मिश्की लाश के करीब पहरेदारों को पेश करता है। न पहरेदार सुबह से धूप में खड़े थे। इन्होंने मिश्की को हाथों हाथ लिया और प्यास बुझाई। मगर ये आम पानी नहीं था, इसमें बेहोशी की दवा मिली थी। चंद लम्हों बाद उनकी आंखें बोझल हुईं और वो जमीन पर गिरने लगे। रात के अंधेरे में महल के बाहर सिर्फ खराटे सुनाई दे रहे थे।
वो नौजवान अब खामोशी से आया। उसने तेज खंजर से रस्सियां काटें और लाश को आहिस्ता से नीचे उतारा। पूरा मंजर ऐसा था जैसे वक्त रुक गया हो। नीलाश को कपड़े में लपेटकर वो नौजवान उसे गधे पर रखता है। उसका चेहरा पसीने से शराबूर है, मगर दिल में सुकून है। न भाई, मैं वादा पूरा कर रहा हूं, उसने आहिस्ता से कहा, और गधा लेकर अंधेरे में गुम हो गया। अगली सुबह जब सिपाहियों को होश आया तो महल में हंगामा मच गया। लाश गायब थी, पहरेदार बेहोश। शहंशाह रेम्स ने गुस्से से मुट्ठी भींची। ये कोई मामूली चोर नहीं, ये मेरा दिमाग पढ़ रहा है। रेम्स गुस्से में था, मगर दिल में कहीं गहराई में वो इस अकल को सलाम पेश कर रहा था, न जिसने लाश चुरा ली वो मेरा दुश्मन नहीं, वो मेरी आजमाइश है। नाब वो जानता था, ये सिर्फ चोरी नहीं, ये मुकाबला है। शहंशाह रीमस गुस्से और मायूसी में डूबा बैठा था। उसकी बेटी शहजादी अनाता महल की छत पर चांदनी में बैठी सोच रही थी। न अब्बा हुजूर, जिस चोर को आप धमकी से ना ला सके उसे हम लालच से बुलाएंगे। शहजादी की आंखों में चालाकी चमक रही थी। अगले दिन पूरे मिस्र में ऐलान हुआ, जो नौजवान शहजादी के सामने आकर अपना ऐसा कारनामा सुनाए जो उसके दिल को छू जाए, उसे इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर लोग जौक दर जौक महल की तरफ चल पड़े, मगर शहजादी सिर्फ एक को सुनना चाहती थी। शाम के वक्त एक दुबला पतला नौजवान आया, चेहरे पर नकाब, आंखों में खामोश आग। न शहजादी साहिबा, मेरा किस्सा ऐसा है जो सिर्फ अंधेरे में सुनाया जा सकता है। न शहजादी चौंकी, फिर फौरन हुक्म दिया, तमाम चराग बुझा दो। न अंधेरे में नौजवान ने धीमे लहजे में कहा, मैं ही था जिसने खजाने की चोरी की, मैं ही था जिसने फिंदे में फंसे भाई का सर काटा, और मैं ही लाश चुरा कर ले गया। निया सुनते ही शहजादी की आंखें फैल गईं। उसने जोर से चीख मारी। अब शहजादी ने नौजवान का बाजू थाम लिया, लेकिन उसका बाजू सर्द, सख्त और बेजान था। न ये लकड़ी है। नासी पल खिड़की के पास धुआं सा उठा और वो नौजवान बाहर की तरफ छलांग लगा गया। सिपाही भागे, मगर सिर्फ अंधेरा बाकी था। न जब बादशाह को खबर मिली कि नौजवान बच निकला तो उसके चेहरे पर हैरत, गुस्सा और बेबसी एक साथ उभर आए। न ये लड़का मुझसे नहीं, मेरी अकल से लड़ रहा है। न शहजादी ने धीरे से कहा, अब्बू, अगर वो फिर से आए तो हम उसे दुश्मन नहीं, मेहमान समझें। अगले दिन बादशाह ने शाही कासिदों के जरिए पूरे मिस्र में ऐलान करवाया, जो नौजवान शाही खजाने का राज जानता है, हम उसे माफ़ी देते हैं। अगर वो खुद को पेश करे, न सिर्फ जिंदगी की अमान पाएगा बल्कि उसे इनाम दिया जाएगा। न सारी सल्तनत चौंक गई। अब पहली बार दुश्मन को दावत दी जा रही थी। न चंद दिन बाद महल के दरवाजे पर एक नौजवान पहुंचा, वही जिसने चालाकी से लाश चुराई थी, जिसने फिंदे से भाई को छुड़ाया और जिसने शहजादी को हैरान कर दिया था। न मैं वही हूं और अब खुद को पेश करता हूं, सच्चाई के साथ। न शहंशाह रेम्स के सामने पेश होकर नौजवान ने सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। नख्फिया दरवाज़ा, भाई की कुर्बानी, माँ की ज़िद, लाश की चोरी और आखिर में शहजादी का जाल। न महल में खामोशी छा गई, जैसे दीवारें भी सुन रही हूं। कुछ लम्हों के लिए बादशाह की ज़बान बंद रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैंने ज़िंदगी में बहुत ख़जाने देखे, मगर तू सबसे कीमती निकला। फिर उसने हाथ उठाया और कहा, मिस्र की अक्ल अब मेरे ख़ानदान का हिस्सा बनेगी। शहजादी अनाता दरवाजे के पीछे सब सुन रही थी। जब उसे बाप ने बुलाया, वो नरमी से मुस्कुराई। ना अब्बा, मैं उस शख्स की इज्जत करती हूँ जिसने भाई के लिए सर काटा, माँ के लिए खतरा मोल लिया और हमें शिकस्त देकर भी सर नहीं झुकाया। नाज की आंखों में फ़ख्र था। वो चंद दिन बाद शाही महल में शादी हुई। मिस्र की सबसे ज़हीन शहजादी और सबसे चालाक नौजवान का मिलाप। नगांव से लेकर महल तक खुशी की लहर दौड़ गई। नगाम उसी अक्ल का ताज है और इज्जत का इनाम। नौजवान अब बादशाह का दामाद था, मगर उसने शहंशाह से सिर्फ एक चीज़ मांगी, न मुझे मेरे भाई की कब्र के पास रहने दो ताकि मैं उसे हर रोज़ सलाम कर सकूं। न बादशाह ने खामोशी से सर हिलाया। न खजाना शायद सोना हो, मगर असल खजाना यादें और कुर्बानी होते हैं।